Hello dear, this is Vaibhav Pandey from Department of Chemistry. My presentation topic is laws of observation of light. I am share my slide. So this first slide is law of observation of time. Following a statement, when light is incident, which is monochromatic, upon a homogeneous a part of this incident, light is reflected. A part is observed by the medium and a remainder is transmitted. Following our mathematical equations, I is equal to I plus IT plus IR, given number equation 1, where I is intensity of incident light, I is observed light, IT is transmitted light, IR is reflected light. So observation of light can be explained by two laws. So first is Lambert's law and second is Beer's law. So first is Lambert's law. Following our given statement, when a beam of monochromatic light passes through a homogeneous observing medium, the rate of decrease intensity of the radiations with thickness of observing medium is proportional to the intensity of incident radiation. So Lambert's given mathematical equation minus di by dx is proportional to the thickness of, so minus di by dx equal to k into I, where k is a constant coefficient. Okay, now next law is a Beer's law of observation of light. Beers ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया कि when a beam of monochromatic light passes through a solutions of observing substance, the rate if decrease of intensity of light with thickness of solution is directly proportional to intensity of incident light as well as concentration. So this is a monochromatic light, source of light. Okay, this is a solutions beaker. I0 is indicate that incident light, I is transmitted light, and this is the distraction part. When light pass through this beam, okay, ये क्या है, यहाँ से क्या है, एक लाइट पास हो रही है जो सॉल्यूशंस ऑफ कंटेनर से ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसे हम आई से डिनोट किया. ओके, कुछ लाइट इस सॉल्यूशन से क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, और इस सॉल्यूशंस में जो कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, वो लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा. ओके, और बीएस ने यही कहा है कि वो ऑब्जर्व करेगा, तो हमें ऑब्जर्व कितनी, उसका स्टेटमेंट दिया है. ओके, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन दी, डेरिवेशन दिया है. ओके, सो फर्स्ट बीएस लॉ गिवन द मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो दिस इज अ minus del I by del x is proportional to the I into C, where C is concentration of solution. Now next step in di by del x is equal to minus alpha into I into C. This alpha is constant coefficient. Okay, माइनस साइन यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया आर एस एच को. तो नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, जो यहाँ का है यहाँ पे लाएंगे और डेल एक्स को ट्रांसफर करेंगे. सो नाउ दिस इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब लाइट इस सॉल्यूशन बीकर से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रांसमिटेड हो जाएगी. देखो यहाँ से, ओके, जिससे आई इज इक्वल टू आई जीरो टू आई, जैसे इंटीग्रेशन में लगाया हमने. ओके, आई जीरो टू कहाँ से ट्रांसमिट हो, आई जीरो से लेकर आई तक. ओके, और उसकी थिकनेस किससे डिनोट किया, बी से थिकनेस डिनोट किए, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. ओके, एक जीरो होगी और दूसरी कितना होगी, बी होगी. तो देखो यहाँ से, देखो जीरो टू बी. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ आई जीरो टू आई डेल आई बाई डेल आई del I by I equal to minus alpha into C integrations of 0 to B del x. So solve these integrations. इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, log आता है, log of I I0 to I, okay, equal to minus alpha C into x 0 to B. Okay, solve this. अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, log of I minus log of I0 इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटू पी. यहाँ पे मैंने अपर माइनस लोअर पुट करने के बाद कितना आता है, बी आता है. ओके, तो ये पता है हमें log ऑफ ए माइनस log बी क्या होता है, log ए बाई बी होता है. तो यहाँ पे वो फार्मूला यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होता है कि log आई माइनस आई जीरो इक्वल टू एज वेल एज, ओके, दिस साइड इज एज वेल एज, तो माइनस अल्फा इंटू सी बी.
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉग को हम एल एन निकाल सकते हैं, ओके, क्योंकि नेचुरल लॉग है हमारा, तो एल एन इंटू आई बाई आई ज़ीरो इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी बी। ओके, अब क्या करना है, जो माइनस साइन है अब क्या करना है माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा, ओके, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या किया है कि एल एन इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू बी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल एन की वैल्यू होती है, हमें पता है कि लॉग इज नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग में क्या करते हैं, अगर हमें कॉन्सेंट्रेट कंपाउंड की वैल्यू निकालनी है, अननोन कंपाउंड, तो 2.330 log to the base 10 आई जीरो डिवाइड बाई आई इक्वल टू अल्फा सी बाई बी। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाए। बाद में क्या करेंगे, ये जो अल्फा है, ये अल्फा को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसको भी हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई बी सी लॉग टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइड बाई आई। ओके, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू है 2.303 इसको भी यहाँ पे ले आएंगे, अल्फा डिवाइड बाई 2.303 इक्वल टू, ओके, यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई बी सी लॉग टू द बेस 10 आई जीरो बाई आई एक्सोलम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक्सोलम पुट करेंगे, एक्सोलम पुट करेंगे, क्या पता है कि एक्सोलम, वेयर एक्सोलम क्या है, एक्सोलम इज इक्वल टू अल्फा, या भाई इसकी जगह एक्सोलम पुट करेंगे, एक्सोलम इज द मोलर ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट। So now next step, alpha epsilon is equal to 1 by bc log to the base 10 I0 divided by I. So this bc को भी यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो epsilon bc is equal to log to the base 10 I0 by I, और इसकी जगह पुट करेंगे a। so ये जो a को क्या डिनोट करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, जो सॉल्यूशंस ऑफ बीकर में कितनी लाइट ऑब्जर्व होती है, इतनी ऑब्जर्व होती है, कितनी, कि a is equal to log to the base 10 I0 by I is equal to EBC। EBC को डिनोट कर सकते हैं हम ये। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। So the quantity of log to the base 10 I0 by I is called as observance of medium. It is denoted by A when C is C क्या हमारा concentration solution है, तो C equal to 1 molar per liter, X equal to 1 cm, ओके, सेंटीमीटर, एक्स क्या थिकनेस कितनी होती है हमारी, डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर, और ट्रांसमिटेड, अब देखो ऑब्जर्वेशन, हमें तो पता है कि इस सॉल्यूशन कितनी लाइट ऑब्जर्व करती है, कि इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आई जीरो बाई आई। ओके, और ट्रांसमिट कितनी करेगी, ट्रांसमिट कितनी करती है वो, लाइट कितनी ट्रांसमिट होती है, कि टी इज इक्वल टू आई बाय आई जीरो, टी इज इक्वल टू आई बाय आई जीरो। सो दिस इज अ Beer's law is applicable to the dilute solutions only. This is a simple mathematical derivations. Okay, तो बेस में कुछ एप्लीकेशन भी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज to determine the unknown concentrations compound, to determine the unknown concentrations compound. Okay, second is to characterize a compound by drawing observance spectrum. Third is to measure observance of compound by using spectrometer. So this is applications